Okay. Assalamu alaikum class. Assalamu alaikum. As we know, in previous yesterday, our director, Mr. Subur sir, has mentioned about today's class. So I would like to inform to all of you today. Uh, today will take classes our special guest, whose name Janab Mr. Muhammad Rahmat Ali, who is pursuing PhD and from International Islamic University, Malaysia, and he has done BTech, MTech, research scholars, cyber security, and digital forensic. So I would like to call Janab Mr. Rahmat Ali sir. Already he has joined us. So I think. I am here, sir. Oh, okay, sir. Assalamu alaikum, sir. Ji. So, can we start the session, sir? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Do I need to open my video or just an audio is enough? No, you can audio, Please, video, whatever. both the things. Okay, sir. Okay. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, let me start. If at all, if there is nothing to do, we can start the session. Okay, sir. If you want to share your PPT on screen, then you can. Already, I'm allowed you. Okay, sir. Like I'm just sharing this. Okay, Okay. sir. Thank you. Now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. My name is Muhammad Rahmat Ali, and I think Brother Shahid has given an introduction of mine. So, very thankful to him. I'm blessed and I'm pleasured that you have given introduction. But most importantly, the best introduction for me is like, I'm also a student like you. I'm also a student like you. So we'll start with the things. So how many of you are comfortable with, sir, can we speak in English or Urdu? Any of the things? Sir, both you can use. Both, okay. Yes. Okay, well, because if at all, if there any Urdu medium student, then it will be difficult. So that's the reason I'm asking. If at all everyone is feasible, then we can speak in English. If at all there is any of the thing difficulty, then I'll shift it to or change it to Urdu. Okay, now let me start. Now, in today's session or in today's time, we will be discussing about the issues related to the students and how students think with reference to their careers and with reference to their learnings and also with the reference to their understanding level towards the subject. So as you all are aware and as you all are studying with reference to DCA, Diploma in Computer Application, you have been into a career in which you want to pursue something in computers. The zeal of learning computers have made you to study this subject. Okay. Now, in today's session, I'll be talking something with reference to the changing the way of how students think about their learning. And also I'll be studying or not studying, I'll be letting you know how we can study the different parts and how can we elaborate ourselves in making ourselves
a better student when we are pursuing something. And also, we also will be sharing some of the movements, and I'll be giving some minutes for question and answer session. Okay. Now, the first thing that I want to address over here is like why a student doesn't need any money or cash. See, to be successful in life, most of the people think like having cash, having money, or having something called as green honey. They think like we are the best person in the world. हम ये समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, रुतबा है. हम ये समझते हैं कि दुनिया के सबसे खुशमंद आदमी हम समझते हैं अपने आप को. लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं. ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि आप दुनिया के खुशकिस्मत आदमी अगर आपके पास पैसा हो. ये बिल्कुल बात जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंसानी नफ्सियात और इंसानी जहन को जो माजूल कर रहा है, जो रोक रहा है किसी चीज़ को उभरने से, वो है मनी और व्हाट यू कॉल्ड एज फाइनेंस. अगर आपके पास पैसा है तो ही लोग आपको कंसिडर करते हैं कि आप सक्सेसफुल है. सबसे अहम चीज़ ये है कि सक्सेसफुल बोलते हैं किसको है, सक्सेसफुल होता क्या है. पहले ये जान लेते हैं हम लोग, सक्सेसफुल आदमी होता किस बोलते किसको है. ठीक है. सक्सेसफुल आदमी मेरी नज़र के अंदर वो है जिसने अपने पैशन, अपने एम्बिशन को पा लिया हो. फॉर एन इंस्टेंस, मान लीजिए किसी एक आदमी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी को एक गिटारिस्ट बनना है, किसी को पेंटर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है. अगर वो आदमी विद इन द स्पैन ऑफ टाइम जो इसकी एज है और जो उसका जो गोल है, अगर वो उसको हासिल कर लेता है एक मानों में, वो सक्सेसफुल है. पूरा सक्सेसफुल नहीं है, पूरा सक्सेसफुल नहीं, एक मानों में वो एक सक्सेसफुल आदमी कहा जा सकता है. क्योंकि सक्सेस का कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. सक्सेस का कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. तो हमको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमको जिंदगी भर ये सोचकर चलना चाहिए कि हम लर्निंग स्टेज में हैं. जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपको सब आता है या आप सब जानते हैं, समझ लीजिए वो लास्ट दिन है आपका लर्निंग का, वो लास्ट दिन है आपका लर्निंग का. तो करना क्या है, हमें करना क्या है? हम जब आप बोल रहे हैं कि सर कैश की मनी की ज़रूरत नहीं है, तभी करना क्या फिर? मतलब क्या है फिर सब चीज़ कमाने का? हर चीज़ को पैसे में नहीं तोलते और हर चीज़ को कैश में नहीं तोला जाता. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बॉडी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई कहेगा ब्रेन, कोई कहेगा दिल, कोई कहेगा स्किन, कोई कहेगा फला फला. लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है. आपकी बॉडी का हर पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए किसी की एक आंख नहीं है, किसी की मतलब कुछ ईयर प्रॉब्लम है, वो अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल करता है. आप उस आदमी के साथ बैठ के देखिए जिसकी आंख थोड़ी कमजोर है, जिसके कान थोड़े कमजोर है, उनके साथ बैठ के देखिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने, अल्लाह ताला ने हमको कितनी अच्छी नेमत से नवाजा है. तो इस तरीके से आप एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को नहीं कह सकते कि आंख ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका बात करने का अंदाज सबसे इंपॉर्टेंट. नहीं, हर चीज बराबर बराबर इंपॉर्टेंट है. अब हो ये क्या है कि हम इस मॉडर्न दुनिया में हर किसी को और हर चीज को पैसे के एतबार से तोलते और नापते हैं. जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो वो कहेगा कि मैं क्लर्क हूँ, कोई कहेगा मैं मैनेजर हूँ, कोई कहेगा कि मैं फला हूँ. तो हम उस बात को लेकर हम उस आदमी को जज करते हैं कि वो किस लेवल का और कितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए. मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई आईपीएस आदमी आया तो बहुत रेस्पेक्टफुल आदमी तरीके से बैठेंगे उसके साथ. अगर मान लीजिए कोई टीचर आपके बाजू आके बैठेगा तो किस तरीके से रेस्पेक्ट से बैठेंगे. मान लीजिए कोई आपके पास क्लीनर आके बाजू बैठेगा तो किस तरीके से बैठेंगे. हम उसके प्रोफेशन के हिसाब से हम उसको जज करते हैं और उतनी रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारे जहन में पहले से ये चीज बचपन से बिठा दी गई है कि तुम्हें इतने पैसे कमाना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें फला बनना है. लेकिन हमको असल बनना क्या है? असल में बनने की जो चीज वो ये है कि हमारे अंदर इंसानियत आनी चाहिए. सबसे बड़ा तोहफा जो इंसान को मिला है वो है इंसानियत और अशरफुल मखलूक़ात का. हम इसी वजह से बंदर से अलग हैं, इसी वजह से हम शेर से अलग हैं, इसी वजह से हम दुनिया में जितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं उनसे हम अलग हैं और उनसे ऊपर हैं. क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको सही और गलत की तमीज़ दी है, सही और गलत की हमको तमीज़ दी है, और सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी दी है। तो हमको इसको यूटिलाइज करना है, और हमको इसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया में कुछ ऐसे काम कर गुजर जाने हैं जिसकी वजह से दुनिया हमें याद रखे। जब भी किसी का नाम लिया जाए तो लोग अच्छे नाम से आपको पुकारें। ऐसा ना हो कि ये आदमी हमेशा पैसे के पीछे भागता रहा, ऐसा ना हो कि ये आदमी हमेशा अपने मफाद के लिए काम करता रहा, ऐसा ना हो। दुनिया में जब भी आपको लोग याद रखें, दुनिया में जब भी आपको लोग याद रखें तो अच्छे नाम से याद रखें। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, हमारे इंडिया का अंबानी है। एक तरफ उनकी दौलत है, दूसरी तरफ उनका मतलब आखिरी वक्त आ गया है। क्या वो पैसा उनको उनकी जान के बदले बचा सकता है? नहीं, हरगिज भी नहीं। एक सेकंड की भी ज्यादा मोहलत नहीं मिल सकती अगर वो सारी दौलत भी दे दे। अगर ये हो कि किसी कोई मुसीबत हम पे आने वाली है, अगर किसी ने हमारे हक में दुआ की हो, तो हो सकता है वो मुसीबत हमारे ऊपर से टल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुआ जैसी बड़ी नेमत है। तो हमको चाहिए कि हर किसी की दुआ में रहे हम, हर किसी के अच्छे अखलाक में रहे हम। जब भी हमें कोई याद करे तो अच्छे नाम से याद करे और अच्छी दुआएं हमको दे। दुआ देने और दुआ लेने का मतलब ये नहीं कि फकीर को 10 रुपए दे के ये बोले कि हमारे लिए दुआ करो, किसी गरीब आदमी को देख के पैसे दे के बोले कि दुआ करो। नहीं, उसको दुआ नहीं बोलेंगे। दुआ किसको बोलेंगे? जब किसी को वाक़तन कोई चीज की जरूरत हो और वाक़तन वो मजबूरी में हो, उस वक्त बिला किसी इंटेंशन के, बिला किसी हमारे जहन में किसी मतलब के हम उसकी मदद करें। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आपका एक जो दोस्त है उसको मतलब पेंसिल, इरेजर या कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। आप उसको पेंसिल दे के ये ना सोचे कि अगली बार जब मैं पेंसिल लाऊं तो पेंसिल देना, ऐसा नहीं। आप इस वजह से दें क्योंकि वो जरूरतमंद है, इस वजह से आप उसको पेंसिल दें, तो अल्लाह ताला आपको इसका डबल अजर देगा। एक औरत जो सिर्फ, एक कुत्ता प्यासा था, अपने जूते में पानी भर के वो औरत जो है कुत्ते को पानी पिलाती है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाने की वो देता है। तो हमको चाहिए कि हम किसी के सबके अच्छे में रहें, क्योंकि आजकल के दौर में ये देखा गया है कि जितने ज्यादा पैसे होंगे आप उतने ज्यादा दूर लोगों से होंगे। और ये आप गौर करके देख लीजिए कि जितने अमीर लोग होंगे उतना वो पब्लिक से दूर होंगे, जितने गरीब लोग होंगे वो पब्लिक से करीब रहेंगे। करीब रहेंगे इन द सेंस एक दूसरे का दर्द समझेंगे। नो डाउट अमीर लोग भी दर्द समझते हैं, लेकिन असल जो दर्द होता है इंसान का वो होता है इखलास खुलूस से, इखलास और खुलूस से होता है। तो कहने का जो असल मकसद है कि हमें पैसे से किसी को तोलना नहीं है, ना हमें पैसे से किसी को जज करना है, ना हमें पैसे से किसी को क्या बोलना चाहिए, उसकी इज्जत के लिए हमको वो नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है, और हम जो चीज भी कर रहे हैं सही साफ नीयत के साथ करना है। दूसरी अहम चीज जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, हर किसी के हाथ में आजकल सोशल नेटवर्क है। हमको इस बला से निकलना है, हमको इस बला से दूर रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दें उसको या पूरा ही वो कर लें। जिस तरीके से कश्ती और पानी का जो रिलेशन होता है ना, उस तरीके से रहना है। जब तक कश्ती पानी की मतलब जितना ज्यादा पानी है कश्ती उतना अच्छा स्मूथ फ्लो होती। जिस दिन कश्ती के अंदर सुराख हो गया, समझ लिए उस दिन कश्ती डूब गई। इसका मतलब ये है कि आप नो डाउट सोशल मीडिया पे सर्फ करिए, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए कि हमेशा एक बात याद रखिए कि एक्सेसिव ऑफ थिंग्स कैन हार्म यू, एक्सेसिव ऑफ थिंग्स कैन हार्म यू इन मेनी ऑफ द वेज। तो हमको सोचना यह है कि सोशल मीडिया पे हमको उतना ही टाइम सर्व करना है जितना आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूज़ जो हम सुनते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए सुनते हैं, वो 1 घंटे की न्यूज़ में हमको सारी दिन की जो भी चीज़ें हैं वो मालूम हो जाती है। तो उसी तरीके से आप भी अपना एक टाइम स्लॉट बना लीजिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का।
आप सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये हकीकत है, लेकिन हमको ये हकीकत भी जानना है कि हम ज्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पे सर्फ ना करें, उतना ही सर्फ करें जितनी हमें जरूरत है। जितनी हमको इन मकदार में जरूरत है, जितनी हमको क्वांटिटी में जरूरत है, उतना ही हम इस्तेमाल करें। तीसरी जो अहम चीज है जो हम रिसेंटली एक्सपीरियंस करें, वो है जितना ज्यादा फ्री टाइम आदमी के पास होगा, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आदमी की कि नए प्रॉब्लम में वो घिर जाए। क्योंकि कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स प्लेस, बोल के खाली दिमाग शैतान का घर होता है बोल। तो हम खाली वक्त में, और रूसा सलम ने फरमाया कि गनीमत जानो तीन चीजों को, तीन चीजों से पहले। उसमें एक चीज ये है कि खाली वक्त को अपनी मसरूफियत से पहले, जब भी कोई खाली वक्त मिलता है तो इस बात को सोचिए कि आप उसमें क्या नया सीख सकते हैं, उसमें आप क्या नई चीज सीख सकते हैं, इस बात का आप हमेशा तहिया करके रखें। कि मान लीजिए कल संडे है, आपको मालूम है कल संडे, कल का पूरा दिन आपके पास फ्री है, तो आप अपने संडे को इस तरीके से डिजाइन करिए जिसमें आप अपना पर्सनल काम करेंगे, अपने घर का काम करेंगे, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारेंगे, अपने जो एकेडमिक्स है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन करेंगे, आप स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे या वॉकिंग करेंगे। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन भर के स्केड्यूल को डिवाइड करें ताकि आप हर काम कर सकें। और एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये कभी भी देखिए, हर जो आदमी होता है वो ये कहता है कि आप अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमें दें। कोई भी किसी खाली आदमी के पास जाके ये बोलता है कि आपका खाली वक्त हमको दो, नहीं। अहमियत सिर्फ उसी आदमी को दी जाती है जो मसरूफ होता है। अहमियत सिर्फ उसी आदमी को दी जाती है जो मसरूफ होता है। उसी को कहा जाता है कि आइए अपना कीमती वक्त हमें भी दीजिए ताकि हम भी आपसे इस्तेफादा कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आपके बाजू 5-10 मिनट के लिए सीएम बैठे और 5-10 मिनट के लिए कोई आम आदमी बैठे, तो दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप जब सीएम के बाजू बैठेंगे तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ वो बात करेंगे जो उससे बात करने की है, सिर्फ जो उससे बात करने की। अगर कोई आम आदमी आपके बाजू बैठता है तो उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि मौजू क्या बात करें। उसी तरीके से अगर आप पहले से प्री प्लान्ड है अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, तो हो सकता है आप अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके कुछ कर गुजर जाएं। ठीक है। हमेशा मेरे वालिद साहब मेरे को एक मिसाल दिया करते थे कि पहले के ज़माने में सरकारी नल हुआ करते थे। सरकारी नल क्या, आप भी अपने घर में देखिए कि जो नल होता है, नल के नीचे जो पत्थर होता है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है जिसपे हमेशा पानी टपकते रहता, जिससे हमेशा पानी टपकते रहता। मतलब कि जितना वो पानी खतरा खतरा टपक रहा, वहां पे होल पड़ गया, वो खतरा पड़ने की वजह से वो खतरा पड़ रहा है, तो पत्थर के अंदर भी होल हो गया। तो मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि एक पानी का छोटा सा अदना खतरा पत्थर को चीर सकता है, तो इंसान अपने इरादों से हर वो चीज कर सकता है, लेकिन बशर्ते के वो कंसिस्टेंट हो, वो मुसलसिल हो और कंटिन्यूअस हो, छोटा हो। ऐसा ना हो कि पूरा दिन भर का काम एक ही सेकंड में कर लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन कंटिन्यूअस तौर पे करना है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते तक 3 टाइम ये दवा खाइए। अगर आप संडे के दिन बैठ के पूरे 7 दिन के दवाएं या 7 दिन के गोलियां एक ही साथ एक ही टाइम पे बैठ के खा लिए, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा उससे। डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको प्रिस्क्राइब किया है, सुबह में एक गोली, दोपहर में एक गोली, शाम में एक गोली, यानी कि आपको वक्त मुतय्यन करके दिया गया है। द टाइम इज असाइंड फॉर यू टू टेक दैट मेडिसिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आपको उसी मुकर्रर वक्त पे वो गोली खाना है, तभी जाके आपको फायदा होगा, वरना कुछ भी फायदा नहीं होगा। चाहे आप 10 गोली खा लो, 15 गोली खा लो एक ही टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि उसके रिएक्शन में कुछ आपको दूसरी चीज हो जाए। तो इसी वजह से मुसलसिल और तसलसल से आपको काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ आपको काम करना है, ताकि आप कुछ नई चीज कर गुजरे। अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ज्यादा खाली ना रहें। अगर कुछ भी खाली वक्त मिल रहा है आपको, तो उस ऐसे काम में लगाएं जो आपको बिजी रखे। मिसाल के तौर पे आप शाम के टाइम पे 4 बजे बैठे हुए हैं, खाली, तो खाली कुछ भी काम नहीं है आपके पास, तो अपने कंप्यूटर के नोट्स निकाल के पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना दिल नहीं बोल रहा है, तो बाहर निकल के 5 मतलब लोगों से मिलिए, बात करिए उनसे, आपके कोई ओल्ड फ्रेंड से बात करिए, आपके कोई रिश्तेदार से बात करिए, या नहीं तो आप
आपसे किसी की नहीं बनती है तो उस बारे में सोचिए कैसी किस तरीके से मैं अपने आप को उसके लिए अच्छा बना सकता हूँ। मगर कुछ भी हो जाए खाली मत रहिए, खाली जितना रहेंगे उतना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा वो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज जो आपको कहनी है वो ये है कि अपने माँ बाप से अपना जो रिश्ता है उसको बहाल करिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारी और आपकी एक ऐसी एज है जिसमें हम चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स सुने। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि पापा मेरे को साइकिल होना है, मम्मी मेरे को साइकिल होना है, आप जिद पे अड़ गए, आप जिद कर रहे हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बेटा अभी नहीं, थोड़े दिन सब्र करो, उसके बाद में आपको दिलाएंगे। वो क्यों कह रहे हैं? वो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, आपके भलाई के लिए सोच के कह रहे हैं। आप अपनी बात रख दीजिए, माँ बाप अपनी आपकी बात को याद रख के सही वक्त पे आपको वो चीज दिला देंगे, सही वक्त तो वो चीज आपको दिला देंगे, क्योंकि माँ बाप को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, माँ बाप ने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, माँ बाप ने आपसे ज्यादा मसाइल फेस करे हैं, माँ बाप को मालूम है कि किस जगह पे कैसे मसाइल आने वाले हैं। और दूसरी हम जो चीज वो ये है कि दिन भर में जो चीज भी हो रही हो माँ बाप के सामने हर चीज बयान करें। मिसाल के तौर पे सुबह से शाम तक जो चीज भी कर रहे हैं आपके माँ बाप को मालूम हो। अगर किसी टाइम पे अगर आपके माँ बाप से पूछा जाए कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है, तो माँ बाप इस पोजीशन में हो कि वो ये कह सकें कि मेरा बेटा 7 बजे के टाइम 8 बजे के टाइम अलखर पे होता है, जाके देख लीजिए। मेरा बेटा 3 बजे के टाइम पे स्कूल में होता है, मेरा बेटा 4 बजे के टाइम पे ग्राउंड पे होता है, मेरा बेटा 6 बजे के टाइम पे ट्यूशन पे होता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ माँ बाप कह सके अपनी औलाद के बारे में, इतना आप हक दें अपने माँ बाप को आपके ऊपर, इतना तो आप अपने माँ बाप को आपके ऊपर हक दें, ताकि माँ बाप ये कह सके कि मेरा बेटा इस वक्त ये कर रहा है, मेरी बेटी इस वक्त ये कर रही है, और ये हक दें कि मेरा बेटा ये चीज कर सकता है। ये मेरा बेटा मिसाल के तौर पे अगर आपके पापा आपको ये बोले कि बेटा मेरे को ये मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डालना नहीं आ रहा, डाल के दो। ऐसा ना हो कि मतलब पापा इससे पहले बोला ना आपको, मम्मी इससे पहले बोला ना, मैं आपको नहीं आता क्या। ऐसा नहीं, आप उनको सिखाएं, आप उनको सिखाएं। जब आप बचपन में जब छोटे थे आप 100 बार पूछे थे कि मम्मी ये क्या है, मम्मी 10 बार बोले थे कि मम्मी बेटा ये फलाना चीज है, बेटी ये फलाना चीज है। आज आपको बताना है, क्योंकि मॉडर्न माँ बाप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप को चीजें सिखाएं जिस तरीके से उन्होंने आपको बोलना सिखाया था। और दूसरी अहम चीज, अपनी जबान की तेजी अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं आजमाना, क्योंकि ये वही माँ बाप है जो आपको बोलना सिखाए। अपनी जबान की जो तेजी है अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं आजमाना, क्योंकि ये वो वही माँ बाप है जो आपको बोलना सिखाए, किस तरीके से बात करना, ये आपके माँ बाप ही सिखाए आपको। तो उनके साथ कभी भी ये चीज टेस्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपको अब डीसीए के जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे आप कंपटीशन नहीं कर सकते डीसीए का, डीसीए के कंटेंट का। क्यों? क्योंकि आपके सर आपसे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस रखते। तो सेम उसी तरीके से आपके माँ बाप आपको बात करना बोलना सिखाए, उनसे कभी जबान दराजी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, और दुनिया के हर बच्चे के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ठीक है? किसी ने खूब कहा कि बड़ा झाड़ फल ना दे लेकिन साया जरूर देता। माँ बाप आपकी कोई हेल्प नहीं कर सक रहे लेकिन बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं आपको। तो उनका ख्याल रखिए, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आइए, क्योंकि माँ बाप ही वो जग चीज लोग हैं जिनकी वजह से हमको जन्नत मिलने वाली है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। तो हमको माँ बाप के साथ अच्छे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है माँ बाप के सामने बोलिए, अपनी अपनी खुशी, अपना गम, अपना एक्सपीरियंस, आपकी कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो माँ बाप के साथ बताइए, माँ बाप को बोलिए। माँ बाप अपनी आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपने बेटे की बात नहीं सुनेंगे? हर माँ बाप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के साथ आप भी कॉर्पोरेट करना, माँ बाप के साथ आप भी अंडरस्टैंड करना। हो सकता है कि माँ बाप के पास उस वक्त वो चीज करने के लिए वो नहीं हो, लेकिन आप जिद करने की वजह से माँ बाप अपने अंदर ये फील करेंगे कि हो मतलब क्यों मैं अपनी बेटे की बात को
कंप्लीट नहीं कर, कितना वो शर्मिंदा महसूस करेंगे अगर आप बार बार वो चीज पे इंसिस्ट करेंगे। तो आपको भी सोचना है इस बारे में। गुस्सा आएगा, थोड़ी देर के लिए वो होगा, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। ये एक ही टाइम पे नहीं आता, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। ऐसा नहीं है कि आप हैरी पॉटर के जैसे छड़ी फिरा दिए आपको हर चीज आगे, नहीं। इसके लिए आपको वक्त लगेगा, इसके लिए आपको सब्र लगेगा, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। अगली चीज जो आपके सामने जो कहनी है वो ये है कि पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी कि आपके दोस्त के पास गाड़ी है, अब आप पापा को बोल रहे हैं कि मेरे को भी होना। और ये भी हो सकता है कि आपका दोस्त फर्स्ट रैंक लेके आ रहा, तो आप सेकंड रैंक लेके आ रहे, तो ऐसा नहीं होना कि उसको फर्स्ट रैंक आया, मेरे को क्यों नहीं आया फर्स्ट रैंक, ये भी नहीं। पीयर प्रेशर इसको बोलते हैं। पीयर प्रेशर अच्छा भी होता है, पीयर प्रेशर खराब भी होता है। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीयर प्रेशर के लिए दुनिया के मामले में अपने से कम वाले को देखो, और आखिरत के मामले में अपने से आगे वाले को देखो। दुनिया के मामले में अपने से एक पीछे वाले को देखो, लेकिन आखिरत के मामले में अपने से एक आगे वाले को देखो। मिसाल के तौर पे आपके पास साइकिल है, हो सक सॉरी हो सकता है कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो पैदल स्कूल को आता हो सकता है आपके पास 3 टाइम खाने के लिए हो सकता है आपके स्कूल का कोई एक फ्रेंड जो सिर्फ दिन में 2 टाइम खाना खाता हो, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। और आपकी क्लास, आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, तो आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का हो जो 5 टाइम की फर्ज नमाज भी पढ़ता हो, सुन्नत नवाफिल भी पढ़ता हो। आप फर्ज नमाज, सुन्नत नवाफिल भी पढ़ते हो, तो हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। आप ये सब चीजें करते हो, लेकिन आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का हो जो कभी झूठ नहीं बोलता हो। तो आपको कंपटीशन करना है, आपको पीयर प्रेशर लेना है, लेकिन दुनिया के मामले में अपने से पीछे वाले से, और आखिरत के मामले में अपने से आगे वाले से। अगर इस तरह अगर आप पीयर प्रेशर लेंगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूं कि दुनिया में ना सिर्फ आप सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, आखिरत भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आपके सामने वो ये है कि फोमो, यानी कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। मिसाल के तौर पे अब आपके दोस्तों के ग्रुप में कुछ एक ऐसी कॉन्वर्जेशन चल रही है, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में बोलना शुरू कर दिया, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे आप कैसा महसूस करेंगे? अरे मेरी ये लेवल की बात इस नहीं है, मेरे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, ये है ही नहीं मेरे लिए। बल्कि ये जो फीलिंग है इसको बोलते हैं फोमो, इसको बोलते हैं फोमो। तो हमको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो सिचुएशन को हमको नोट डाउन करके उसकी स्टडी करना है। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ उस वक्त होता है जब कोई क्लास चल रही हो, कुछ भी चीज मिस हो जाए, या कुछ ऐसे वक्त में जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, कुछ ऐसे वक्त में जब आप देखें कि कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कम महसूस करते हैं। उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखें, ओवर एक्ट ना करें और अंडर एस्टिमेट भी ना करें हमें। उस टाइम पे जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं उसी तरीके से बिहेव करें। आप अपने लेवल के साथ छिड़खानी ना करें, आप जिस लेवल पे है उसी लेवल के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है उस सिचुएशन से आप बहुत आगे निकल सकें, हो सकता है उस सिचुएशन से आप बहुत आगे निकल सकें। तो हमको चाहिए कि कभी भी इस तरीके से आपके अगर आप पास फीलिंग आए तो अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को सोचें, अपने आप को जानें कि किस तरीके से करना है और क्या करना है। आखिरी जो बात जो आपके सामने कहनी है वो ये है अपने ड्रीम्स। ड्रीम्स आंख खोल के देखना है, आंख बंद करके देखने का नाम ड्रीम नहीं है। आंख खोल के ड्रीम देखना है। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे फलाना करना है, मुझे फलाना करना है। तो हमको ये जो ड्रीम्स है हमको अपने दिल में रखना है और कोशिश हमेशा करना है। ड्रीम्स बोलने से नहीं आते, ड्रीम्स कोशिश करने से आते। और जितना ज्यादा फेल होंगे उतनी अच्छी सक्सेस होगी आपकी। अक्सर होता क्या है मालूम है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर हम उसमें फेल हो गए तो हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता। बल्कि नहीं,
जिस दिन भी आपको ये महसूस हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, उस दिन डबल फोर्स से काम करिए। हार्ड देखिए, ड्रीम्स को अचीव करने के दो अहम चीजें हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, दूसरा होता है हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क ऑटोमेटिकली आता है, जब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अब आईपीएल चल रहा है, जो टीम अच्छा खेलती है ना मेहनत से, उनका किस्मत भी साथ देती है। मिसाल के तौर पे अब हैदराबाद की टीम के जो डेविड वार्नर है, जब अच्छा खेलते हैं तो उनके कोई कैचेस वगैरह भी छूट जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस से वो शॉट मारते हैं, कोई लूज शॉट नहीं खेलते, कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट खेलते हैं। लड़कियों के लिए जब आप मेकअप वगैरह करते हैं, जब आप लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, आपको जब समझ में आ गया कि लिपस्टिक की स्ट्रोक किस तरीके से लगाना है, आप कॉन्फिडेंस के साथ वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो कहना यह है कि ड्रीम्स को आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको पेशेंस होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि 5 दिन का काम एक दिन में कर लिए, एक दिन का काम 5 दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी से थोड़ा काम डिसाइड करिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए, पर डेली बेसिस पे करिए। जिस तरीके से आप रोज क्लासेस पढ़ा रहे हैं, जो डीसीए का जो कोर्स है वो 1 महीने का कोर्स है, मतलब रोज 1-1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पूरे 24 घंटों के साथ एक साथ एक ही घंटे में एक ही वक्त में पूरा पढ़ा दिए, ऐसा भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों? उस तरीके से आपके जहन में नहीं जाएगा, उस तरीके से आप जहन में अब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो क्या कर रहे हैं, रोज डेली 1-1 घंटा आपको पढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से आपको चाहिए कि आप भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आप उसको प्रैक्टिस करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होती, 100 अटेम्प्ट में भी कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होती। 1000 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार सक्सेसफुल होंगे। अगर किसी को फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में सक्सेस मिल रही है तो यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं। तो आप अपने लक को आपके कॉन्फिडेंस में बदलिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम आप लक से पास हो गए, सेकंड टाइम फेल हो गए, तो लोग आपको उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट टाइम लक से ही हुआ था, कितनी मेहनत कर लो सेकंड टाइम आप। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और अपने आप को प्रूफ मत करिए, किसी भी चीज में अपने आप को प्रूफ मत करिए। आप अपना काम कंटिन्यू करते रहिए, लोग खुद महसूस करेंगे कि यू आर द बेस्ट। लोग आपके ऊपर बात करेंगे, लोग आपको करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ रहना है। एक छोटा सा किस्सा बोल के आपको मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बार एक मेंढक झाड़ पे चढ़ने का डिसीजन लेता है। वो चढ़ना स्टार्ट करता है तो नीचे से कुछ जानवर उसको कुछ पुकार पुकार के कहते हैं, कुछ पुकारते हैं, कुछ पुकारते हैं, बहुत सी चीजें पुकारते हैं। तो उन्हें देख के और जल्दी जल्दी चढ़ता है, और बहुत जल्दी जल्दी चढ़ता है। तो एट द लास्ट वो झाड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाता है। जब वो चढ़ के नीचे उतरता है तो अपने दोस्त से पूछता है कि इतने सारे लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे थे कि चढ़ने के लिए, तो उन्हें बोला क्या दीवाने बातें कर रहे? वो मोटिवेट नहीं कर रहे थे सब लोग, वो लोग आपको डिस्करेज कर रहे थे कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम मेंढक है, तुम झाड़ पे नहीं चढ़ सकते, तुम मेंढक है, तुम झाड़ पे नहीं चढ़ सकते। उन लेकिन वो जो मेंढक था वो थोड़ा सुनने की एबिलिटी से थोड़ा कमजोर था, उसको कम सुने आता था। उन ये समझ रहा है कि सब लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें लेना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज कोई भी बोल रहा है तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको सुन के भी अनसुना करिए, ताकि आप अपनी सक्सेस के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, आप अपनी एम्स में सक्सेसफुल हो सके। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, दुनिया में कोई भी आपको रेस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, क्योंकि बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है। बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना है, दूसरों पे काम करना छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने आप के बारे में सोचिए। जैसा कि किसी ने खूब कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट 3 पीपल। क्या क्या है वो कि आई, मी एंड माई सेल्फ। ये 3 चीजों पे कंसंट्रेट करिए डेवलपमेंट के तौर पे, और हमेशा अपने आप के लिए जज मत, मतलब होता ही है कि हम अपने आप के लिए जज बनना है, दूसरों के लिए लॉयर बनना है। Oh, अपने आप के लिए हमको जज बनना है, दूसरों के लिए लॉयर बनना है। मतलब हम okay. कभी भी कुछ गलती करेंगे तो अपने आप को कुछ सजा देना है, दूसरे कुछ गलती कर रहे हैं तो नजरअंदाज भी करना है। सबसे ज्यादा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप पे वर्क करिए। होपफुली यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन हियर आफ्टर। यही हमारा मकसद है। अच्छा काम करेंगे तो दुनिया में भी सक्सेसफुल है, और अच्छा काम करेंगे तो आखिरत में भी सक्सेसफुल है। माँ Okay. बाप Excuse me, Ramat sir. बेसिक चीजें उसमें। यस Excuse me. सर। Sorry for interrupting. Actually, we have 3 minutes.
So Okay, sir. I'll conclude. okay. The thing is, like, this is all for now. I hope you all understood the thing that I want to say. मैं समझता हूँ कि मैंने जो कहा है आपको कुछ समझ में आया हो. अगर कुछ चीज़ समझ में आई हो तो अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए. फेलियर आएगा लेकिन फिर भी इनको करने की कोशिश करिए. ये चंद बातें जो आपके सामने कहनी थी. आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम. थैंक यू. Welcome, sir. Thank you, sir, very much. Okay, class. मैं रहमत अली सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों को इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन बातें बताई. जो क्लासेस DCA के क्लासेस आप लोग डेली कर रहे हैं, पर ये इम्पोर्टेंस जो बात थी ये शायद सुनने को मिलती है. तो आई थिंक it will be better for you, everyone. Maybe some students feel boring, but I don't think so. मैं रहमत अली सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आप लोगों के सामने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो आप लोगों के लिए बेटर है और हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेटर है. ऑल्दो मेरे लिए भी बेटर है ना. तो जी सर, हम लोग शायद सर जी और बहुत अच्छी बात मैं बताई भी है. थोड़ा थैंक्स बोल देता हूँ. गौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं. ओके. ये रहमत सर गोलकुंडे के हैं और माशाल्लाह से इंजीनियरिंग है और जो है ना रिसर्च स्कॉलर है और मलेशिया में PhD कर रहे हैं अभी. तो ये बातें जो बताए उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस है और इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमको और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. और ये हम माशाल्लाह से सैटरडेज को ये एक सेशन रख रहे हैं जो बच्चों को मोटिवेशन मिले. तो जस्ट यही बताना चाह रहा था. जज़ाकल्लाह खैर. Okay, thank you once again. And all the students, actually our director Mr. Subur sir who had joined already, but they have some issues, therefore they do not able to speak. And say thanks to Mr. Rahmat Ali sir. So what so okay, I hope कि आप सबको अच्छा. Sir, like, I want to say one thing, like, if anyone has any of the doubts, किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या नहीं तो फिर रीजॉइन करके सेशन जैसा भी हो, अगर डाउट्स हो तो. जी अभी हमारे पास टाइम है 1 मिनट. आप लोगों को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो वो पूछ सकते हैं. कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या नहीं तो फिर ऐसा माइक को. कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिए क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है. 1 मिनट आधा मिनट. हाँ पूछो आतिया, पूछो. सर आप हेलो. हाँ बोलो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. यस मैडम. हाँ सर, तो मेरे को ये डाउट था कि आप बोले कि अगर आप कभी भी खाली बैठते हो तो आप कुछ भी काम करो, नहीं तो खाली दिमाग शैतान की जगह है बोलके. सर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, टाइम टेबल भी बनाती हूँ, स्केड्यूल भी करती हूँ, बहुत प्लान भी करती हूँ कि मेरे को ये करना है, मेरे को आज ये काम करना है बोल के. लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं